Very good afternoon to all of you. Today's in this lecture, in this video, we are discussing on the topic modes of entries in international market and try to understand the importance of the various modes which are helpful to enter into the international market. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने के जो विभिन्न माध्यम हैं, जो विभिन्न रास्ते हैं, जो तरीके हैं, उनका किस प्रकार से उपयोग कर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी व्यवसाय प्रवेश कर सकता है। इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने ये डिज़ाइन किए हैं जिससे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर के पढ़ने के उद्देश्य क्या है और उसके बाद हमको क्या हासिल होगा। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई एम डिस्कसिंग यू some objectives that understand difference between exporting, contractual and investment modes. These are the types of modes. First one is exporting, second one is contractual, and third one is investment modes. These are three important modes. We have other modes also. We can discuss all this in later on this chapter. Another objective is distinguish between direct and indirect exporting methods और modes. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो निर्यात के जो तरीके हैं उसको हम इस आज के चैप्टर में समझेंगे. Another objective is describe and understand four main entry modes of indirect exporting, four main forms of direct exporting, and two main modes of cooperative exporting and main contractual and investment modes of entry. These are the other modes we also understand in this chapter. We also learn in this chapter, and we also achieve this objective also after discussing the various topic of this chapter. Discuss the advantage and disadvantage of main entry modes. यह भी हमारा एक उद्देश्य है कि हम जो उस मेन एंट्री मोड हैं, जो मुख्य प्रवेश के जो माध्यम हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी समझने का हम इस चैप्टर के माध्यम से प्रयास करेंगे. लेट्स स्टार्ट. Internationalization as the process of increasing involvement in international business activities. The choice of entry modes, internationalization method from instrument or ways depends on both endogenous factor, main business potential, as well as exogenous factor, describing the business option in the target method market of the industry in which the firm operates. The maturity of internationalization of the activities plays a crucial role while considering the entry mode. In the literature, there are different models explaining the internationalization of term and the entry modes. The different form of entry into foreign market have different variety of the input cost. It seems that the most common taxonomy distinguishes three fundamental groups, namely exporting modes, contractual modes, and investment modes. Now, international market entry. Once the firm has decided to establish itself into the international market, it becomes necessary that the company studies and analyze the various options available to enter into the international market and select the most suitable one. ये बहुत आवश्यक है किसी भी फर्म के लिए, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करना चाहती है, अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहती है, तो उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश करने को लेकर जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, उन सब की क्रिटिकल स्टडी करें एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट वन द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. In order to success in the international market, the decision of select and appropriate entry modes is a crucial and
इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ फर्म इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और जब वो अपने प्रवेश का जो मेन माध्यम है उसको वो चयन कर लेती है, तो वह उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रवेश करने की एक अहम रणनीति बन जाती है। नेक्स्ट इज वाई फर्म हैज़ टू गो इन इंटरनेशनल मार्केट। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ये बड़ा प्रश्न है कि कोई भी व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों जाए। उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स डिसाइड करें। दैट फर्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। बेशक मॉडर्न थ्योरी इसमें कुछ और भी ऐड करती है, बट दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस, to earn maximum profit. And for earning of profit, to raising the profitability of a business, it is very important, it is very helpful to enter into the international market. Another one is growth. Every business needs a growth. Every businessman needs a growth and development in his business. कोई भी व्यवसाय अपने व्यवसाय में हमेशा वृद्धि चाहता है, विकास चाहता है, और अगर वो अपने व्यवसाय में अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रवेश करना चाहिए। ये प्रश्न का जवाब है। दूसरा जवाब, तीसरा, एक्सेस टू रिसोर्सेज। अपने जो संसाधन या साधन हैं उनको एक्सेस करना, उनको बढ़ाना। सीमित संसाधन हैं, ये पर्याप्त है, लेकिन सीमित संसाधनों को बेहतर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, और जो यूटिलाइजेशन है उस यूटिलाइजेशन का मैक्सिमम लेवल तक उसका कंजप्शन होना, ये किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य होता है। इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवसाय को ले जाता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। जो व्यवसाय की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर आने वाले हैं, जो बेहतर अवसर आने वाले हैं, उसके लिए क्या है, किसी भी व्यवसाय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रवेश बहुत आवश्यक है। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। विपणन बगैर महत्ताओं के, बगैर उद्देश्यों के, बगैर अवसरों के सफल नहीं हो सकता, और अवसरों की तलाश में उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है। यूएसपी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो सर्विस कोई भी बिजनेसमैन, ये जो प्रोडक्ट कोई भी फर्म प्रोवाइड कर रही है, उसकी यूएसपी को बरकरार रखना और बेहतर करना, उसके डिमांड को इंटरनेशनल मार्केट में डेवलप करना, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटीज, एनी बिजनेसमैन। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अपनी आर्थिक जो क्षमता है उसको बढ़ाना, और जब आर्थिक क्षमता को आप बढ़ाना चाहेंगे तो आपको और खर्च करना पड़ेगा, और खर्च करने के लिए आपको, आप इन्वेस्टमेंट, उसे हम कैसे और इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के लिए आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाई फर्म हैज़ टू गो इन इंटरनेशनल मार्केट, वी हैव फाइंड द सॉल्यूशन, वी फाइंड द शॉर्ट आंसर। दैट फर्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी, सेकेंड वन इज ग्रोथ, third one is access to resources, fourth is marketing opportunities, next is USP of product and services, and last but not least economic scale. Next, modes of entry in international market. अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, व्यापार में प्रवेश करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, आइए इसको समझते हैं, देखते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये एक बड़ा पार्ट है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आयात और निर्यात। किसी भी व्यवसाय के लिए अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश करना चाहता है तो उसको आयात और निर्यात को बढ़ावा देना होगा, आयात और निर्यात की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा, और जब तक वो उन एक्टिविटीज़ को बढ़ाता नहीं है तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को नहीं ले जा पाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। प्रत्यक्ष विदेशी विनिमय, एक जो विभिन्न जो देश हैं वो अपने यहाँ पर
और जो सक्षम देश हैं उनको यहाँ अपने उनके व्यवसाय को करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और एफडीआई के थ्रू वो उनको कुछ अधिकार देते हैं, उनकी सीमाओं को बढ़ाते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक और रास्ता है जिसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं। अगला है लाइसेंसिंग, कि हम किसी भी बिजनेस का लाइसेंस प्राप्त करें और लाइसेंस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करें। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी, कि जरूरी नहीं कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या लाइसेंसिंग के थ्रू प्रवेश कर सकते हैं, हम फ्रेंचाइजीज के थ्रू भी प्रवेश कर सकते हैं। कोको कोला है या मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर है, और भी जो प्रोडक्ट हैं जिनको आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं, आप उनकी फ्रेंचाइजीज लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर, जो संयुक्त व्यापार होता है, दो फर्मों का संयुक्त व्यापार। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज मर्ज हो गई या बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर व्यापार करना पसंद किया, तो ये एक तरीका है जॉइंट वेंचर कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खुद के व्यापार को स्थापित करें। नाउ वी ऑल्सो हैव, अब हमने एक और प्रयास किया कि इसको हम थोड़ा सा और मोड्स जो हैं उसको अलग अलग तरीके से पढ़ने का कोशिश, उसके अंदर की जो बातें हैं उनको समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट वन, इंटरनेशनल मार्केट एंट्री, प्रोडक्शन इन होम कंट्री एंड प्रोडक्शन इन होस्ट कंट्री, एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र। और ये बहुत सारे जो कारक हैं इसको आप समझ सकते हैं। इसके ऊपर लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजी है, ट्रंकी प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, स्ट्रेटजीज अलाउंसेस है, इन्वेस्टमेंट मोड्स है, ओवरसीज असेंबली, जॉइंट वेंचर। ये अलग अलग प्रकार जो हैं जिनके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं। Now try to understand export and importing. Meaning of export: the thing which we produce in excess we can sell in market or international market to earn profit. जो हमारे पास अधिक मात्रा में है उसको अपने पास रखने से बेहतर है कि हम उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको निर्यात कर दें, या जो दूसरे देशों में अधिक मात्रा में हो रहा है उसको हम आयात कर दें। And next is import, means the things we don't have or we are running with the shortage of the particular things we can import from different cities, region, state, country is called import. अब हम बहुत सी चीज़ें हम बाहर बेचते हैं, भारत बहुत सी चीज़ों को बाहर बेचता है, बहुत सारा प्रोडक्शन है जिसमें चावल एक है, और भी खाद्यान्न पदार्थ हैं जिनको हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। और हम मंगाते क्या है, हम जो हमारे पास शॉर्ट में है, जैसे फ्यूल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेपन्स हैं, इसको हम क्या है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं, इसको हम मंगाते हैं, आयात करते हैं, और दूसरे जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्टिंग इज फ्रीक्वेंटली मोड ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. It is one of the simplest and most common approaches adopted by the firm in their endeavor to enter foreign market. And simply, we can define it as exporting is a marketing and scale of domestically produced goods in another countries. कुछ और एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग के बारे में भी हमने ये लिखा हुआ है। ये आप ये जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ के रूप में भी आपको भेज दिए जाएंगे। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स दैट द फर्म पर्टिकुलर इज इंटरनेशनल बिजनेस थ्रू एन intermediary as does not deal with foreign customer or market. Direct investment means that the firm works with the foreign customers or markets of which opportunities to the develop relationship. Methods of import and export. Here indirect method and direct method. Next one is FDI. This is an important part. FDI, foreign direct investment. FDI stands for foreign direct investment. Foreign direct investment is investment of foreign asset into domestic structure, equipment and organization. It does not include foreign investment into the stock market, isn't it? Now FDI with alliances
Companies enter the international market through FDI, invest their money, establish manufacturing and manufacture facilities through the ownership and control. Greenfield strategy. The term greenfield refers to the starting of the opportunities of the company from scratch in the foreign market. FDI with strategy alliances. Strategy alliances is a cooperative and collaborative approaches to the achieve to the larger goals. Role of alliances. Many complicated issues are solved through alliances. They provide the parties each other strength, help in developing new product with the interaction of two or more industries, meet the challenges of technological evolution, meaning heavy outlay, become strong compete with the multinational companies. अलायंसेज एक दूसरे के साथ जो हम गठबंधन करते हैं, एक दूसरे देशों के साथ जो गठबंधन होते हैं वो एफटीआई के थ्रू हम उसको और बेहतर ढंग से कर पाते हैं. स्ट्रेटेजिक अलायंसेज जब हम करते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज कुछ और पॉइंट्स. मोड्स ऑफ एफडीआई थ्रू अलायंसेज. मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर. ये एफडीआई के अलग अलग तरीके हैं. जैसे मर्जर है, द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर कंपनी जनरली बाय द ऑफरिंग बाय स्टॉक होल्डर ऑफ वन कंपनी सिक्योरिटीज एंड एक्वायरिंग कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ द सरेंडर ऑफ देयर स्टॉक. ऐसा बहुत बार हुआ है. बहुत सी कंपनियों ने दूसरी कंपनियों को क्या कर दिया है, वो मर्ज हो गई हैं दोनों कंपनियाँ. और जब मर्ज हो गई तो एक जो बड़ी कंपनी जिसने उसको खरीदा है, जैसे टाटा ग्रुप ने बहुत एक फोर्ड की एक बड़ी कंपनी उसको अपने पास खरीद लिया था इंटरनेशनल मार्केट में. ऑटोमोबाइल्स की एक बड़ी कंपनी है जिसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था और वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रही है. उसमें टाटा ने सारे जो दूसरी कंपनी के शेयर्स थे वो खरीद लिए और अपने नाम से उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं. Acquisition, when one company takes over another and clearly establishes itself as the new owner of the purchase, is called an acquisition. Joint venture is an entity formed between two more parties or undertake economic activity together. The parties agree to create a new entity by both contribute equity and then they share in the revenue, expenses and control of the enterprises. Now एक्विजिशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ये आप समझ सकते हैं. ऑब्टेन कंट्रोल ओवर द एडवांटेजेस हैं. ऑब्टेन कंट्रोल ओवर द एक्वायर्ड फर्म सच एज फैक्ट्रीज एंड ब्रांड नेम्स. सेकंड, इंटीग्रेटेड द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इनटू द ओवरऑल इंटरनेशनल स्ट्रेटजी. डिसएडवांटेजेस हैं assume all the liabilities such as the financial and managerial. Next topic है licensing. This is very important, the way to enter into the international market. In this mode, the entry of domestic manufacturer leases the right to use its intellectual property, for example, technology, work method, patent, copyrights, brand names, trade markets to manufacture in a foreign countries of फ्री. एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं. नेक्स्ट है फ्रेंचाइजीज. अंडर फ्रेंचाइजिंग एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फ्रेंचाइजीज ऑपरेटर द बिजनेस अंडर द नेम ऑफ अनदर कंपनी कॉल्ड द फ्रेंचाइजीज. इन सच एन arrangement of the franchises pays a fee to the franchises. Franchising is a form of licensing, but the franchisor can exercise more control over the franchises as compared to that in licensing. आज बहुत से व्यापारों ने जिनका नाम बड़ा है उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज छोटे छोटे व्यापारियों को दे दिया है और वो उनके नाम से कमा रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज बेच दी हैं. टेलीकॉम में बहुत सारी हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी कंपनीज हैं और जो डेली नीड्स हमारी हैं, मील्स या खाने की जो चीज़ों में हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी फ्रेंचाइजीज जिन्होंने अपनी जो अधिकार हैं वो बेच दिए हैं, अपना नाम जो है बेच दिया. उत्तराखंड में कुमार एक बड़ा नाम है, कुमार स्वीट शॉप एक बड़ा नाम है जिसने अपनी फ्रेंचाइजीज को अलग अलग लोगों में दिया है. Franchising. Under franchising, an independent organization called the franchises operate the business under the name of the another company called franchisor. In such an agreement, franchisees pay a fee to the franchisor. Franchising is a form of licensing, but the franchisor can exercise more control over the franchises as compared to that in licensing.
नेक्स्ट, फ्रेंचाइजीज एग्रीमेंट. फ्रेंचाइजीज हैज़ टू पे फिक्स्ड अमाउंट एंड रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल्स. फ्रेंचाइजी जब हम कोई भी देते हैं तो हमारे पास हम एक रॉयल्टी के रूप में हम उसको कुछ पैसा दे रहे होते हैं. हम गवर्नमेंट से भी जो अधिकार लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट से रॉयल्टी में हम लीज पर लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार फ्रेंचाइजी अपने नाम को एक फर्म, एक कंपनी अपने नाम को दूसरे जो व्यवसायी हैं उनको दे देती है. उसके बदले जो उनका प्रॉफिट है वो उनसे एक सर्टेन परसेंट के रूप में, जो एग्रीमेंट में लिखा गया होगा जिस तरह से, उस तरह से उसको वो उनसे गेन करती है. फ्रेंचाइजी शुड agree to follow the franchisor requirements. Franchisor help the establishing the manufacturing facilities, or franchisor allows the franchisees some degree of flexibility. कुछ उनको स्वतंत्रता होती है कि अपने अनुसार उसको वो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, फ्रेंचाइजिंग एडवर्टीजमेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस हैं लो फाइनेंशियल रिस्क, लो कॉस्ट वे टू प्रोसेस मार्केट पोटेंशियल एंड अवॉइड ट्रैफिक, NTBs, restriction on foreign investment, maintain more control than the licensing. Franchising provide knowledge of local market. And second side, disadvantages, limited market opportunities, profit. एक बार जो आप डिसाइड करते हैं वो आपको निरंतर रूप से मिलते रहना है. जिस तरह से आप एग्रीमेंट में लिखते हैं उसको डिपेंड्स ऑन फ्रेंचाइजीज. पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट विद द फ्रेंचाइजीज, कभी कभी आपसी मतभेद या झगड़े होते हैं. पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रिएटिंग फ्यूचर कंपिटिटर्स. जॉइंट वेंचर एक और माध्यम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में. अगर आपने प्रवेश करना है, जॉइंट वेंचर कि जब दो कंपनी मिलकर एक साथ काम करना चाहती है, दो फर्म या दो व्यक्ति मिलकर काम करना चाहते हैं. अ जॉइंट वेंचर इज एन एंटिटी फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर पार्टीज to undertake economic activities together. The parties agree to create a new entity by both contributing equity, and then they share the revenue, expense, and control the enterprise. Sony Ericsson, etc. are various examples of the joint venture. Joint venture advantages and disadvantages. Advantages are benefit from local partners' knowledge, shared cost risk, reduced political risk. क्योंकि जब आप जॉइंट वेंचर करते हैं तो मान लीजिए हम यहाँ से अपने व्यापार को अमेरिका में किसी के साथ करना चाहते हैं, तो दो फर्म, एक यहाँ की फर्म है, वहाँ की फर्म, आपस में ये इनका जॉइंट वेंचर हो गया है. अब जो वहाँ का पॉलिटिकल रिस्क है, वहाँ पर हमारी ये यहाँ की जो कंपनी है उसको वहाँ के लिए ज़्यादा परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ती हैं. बेनिफिट फ्रॉम लोकल पार्टनर्स नॉलेज, शेयर्ड कॉस्ट रिस्क, रिड्यूस पॉलिटिकल रिस्क. और डिसएडवांटेजेस हैं रिस्क गिवन कंट्रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी टू द पार्टनर, मे नॉट रियलाइज एक्सपीरियंस, curb on location economics, shared ownership can lead to conflict. Now, some other pros and consequences of franchises. Proven product on services, proven trademark, reduced risk of failure. ये कुछ और पॉइंट जो हमने इसमें ऐड करे हैं, इसको आप अपने, मैं आप जो PDF में आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आप जरूर इसको नोट कीजिए. इंपॉर्टेंट नोटिस है. नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग. Licensing is when a firm called the licensor leases the right to use its intellectual property, technological work methods, patent, copyright, brand name, or trademark to another firm called the licensing in return for a fee. The property license may include patent, trademarks, copyright, technology, technical know-how, specific business skills. ये क्या है? लाइसेंसिंग के थ्रू हम उससे लेते हैं. किसी भी फर्म से आप लाइसेंस लीजिए और उसके नाम से प्रोडक्ट को बेचिए. ये एक तरीका है कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में खुद को स्थापित करना चाहते हैं. और जब आप बेहतर कार्य करना चाहें, आप चाहें तो उसके बाद अपना एक स्वतंत्र व्यवसाय भी स्टार्ट कर सकते हैं. वी हैव सम licensing and franchises versus licensing. Differences between franchisee and licensing. Licensing operation can be done by own way. Licensing has to pay, but in franchisee operation is done by following license rules. Licensing has to pay royalty fee and it's comparatively low. Franchisee has to pay fee, management fee, and it is very high. Produced product are major source of concern, cover all aspect of business including goodwill, trade, market, etc. लाइफ साइकिल 15 से 20 साल इसका है. लाइफ साइकिल इसका भी 5 से 10 साल है. लाइसेंसिंग enjoy sustainable measures of free negotiable और extent free structure. ये फ्रेंचाइजी में है. और लाइसेंसिंग का जो लाइसेंसर एक्सरसाइज
less control over licensor, but franchises exerts greater control over the franchises. Basic issue in international licensing: specific and boundaries of the agreement, determining compensation, establishing right, privilege, and constraints, specifying the duration of the contract, difference in laws and cultural. Here are some advantages and disadvantages of licensing: low financial risk, low cost way to access market potential, and avoid traffic, NDBs, restrictions, foreign investment, and licensing provide knowledge of the local market. And disadvantages are limited market opportunities, profit depends on the licensing, potential conflict with the license, possibilities of creating future competitors. ट्रंकी प्रोजेक्ट, ये एक अनदर जो माध्यम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने का, दैट इज ऑल्सो ट्रंकी प्रोजेक्ट. Trunky project is a contract under which a firm agrees to fully design, contract and equip a manufacturing business service facility and turn the project over to the purchaser when it's ready to operation for a remuneration. We have some other points. Trunky project pros and consequences: focus firm resources on its area of expertise, avoid all long term optional risk, और जो इसके consequences है, financial risk, cost overruns, construction risk, and problem with suppliers. Now we have one other important part, that is contract manufacturing. Contract manufacturing is a process that establishes a working agreement between two companies. As part of agreement, one company produces part of the material on the behalf of their diet. Simply, it can be defined as the process of outsourcing entries or part of the company's manufacturing operation. ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने का एक तरीका है contract manufacturing. A number of global companies outsource their manufacturing activities to low cost of locations. We have some pros and consequences that contract and manufacturing, like as low financial risk, minimize resources developed to the manufacturing, focus firm resources on the element of the value of chain, and the consequences are reduced control, reduced learning potential, and potential public relationship problem. Now, management contract. A management contract is an agreement between two companies whereby one company provides managerial assistant, technical assistant, and specialized services to the second companies for a certain period of time to return in the monetary compensation. ये एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में प्रवेश करने के लिए. मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट. अ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज वेयर बाय वन कंपनी प्रोवाइड मैनेजरल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू द second company to analyze. Most management contracts provide to the training of local personnel who will eventually take over the management responsibilities. We have some pros and consequences. Focus firm resources on its area of contract and minimal financial resources. And consequences are potential return limited by contract expertise and may intentionally transfer property, knowledge, and techniques to the contract. Now we have some special entry modes like management contract, ट्रकी प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग. अभी हमने इसको डिस्कस किया है. तो आज का जो प्रोजेक्ट है इसको हम ख़त्म कर रहे हैं. आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं. इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है उसको आप हमें जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें आवश्यक रूप से पोस्ट कर दें. हम अगले वीडियो में, या आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर आपके साथ लिंक में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. आप उस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो मेरा नंबर है उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का.